Hello students, welcome to Yourpedia. I am Jitendra Tyagi and I am here to again share one more information with you, and this is from UPSC. All of you are aware about the engineering services exam. That is a dream of many engineers to become an IAS officer. Okay, so the recruitment process for this exam has started by UPSC, and let us see some highlights of the notification. Last date for submission of applications is, the main thing is 4th of October 2022. सबसे पहले तो इसको नोट कर लो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है ESC का एग्ज़ाम 2023 के लिए उसके फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं एंड लास्ट डेट टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट डेट, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 4th of October. ओके, सो जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हो प्लीज़ अप्लाई इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज जॉब. ओके, then other important points, how to apply. You can visit website of UPSC and there you can find the detailed notification. You can read it carefully there also. So how to apply, important point is here. First of all you have to register, okay, in the one time registration platform. Okay, if you have not done this registration earlier, then on the website of UPSC you have to make this one time registration on this OTR platform, and after that you have to apply for this engineering services exam. ओके, कोई भी यूपीएससी के थ्रू पोस्ट है उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो एक बार करते हैं यहाँ पे अपनी आईडी बना के, वो आपको कंप्लीट करना है, देन यू कैन अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम. ओके, तो इस चीज को पहले ध्यान रखना है. लास्ट डेट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड फ्रॉम 14th of September से 4th of October टिल 6 PM. तो जो लास्ट डेट में भरते हैं ना फॉर्म बहुत सारे बच्चे कि लास्ट डेट में ही भरना है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं. तो भाई पहले तो ऐसा कोशिश करना कि जितनी जल्दी भर लो अच्छा है, बट अगर लास्ट डे भरोगे तो ये टाइम याद रखना, रात को 12 बजे नहीं 6 PM तक भर सकते हो. ओके, इस टाइम को भी नोट करके रखना है. And next, what are the papers? So they are going to conduct the examination as they usually do in 4 papers: civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, electronics and telecommunication engineering. So whatever your branch is, you have to choose any one of these 4 papers. Suppose you are from EEE, electrical and electronics engineering, so you can apply for either electronics and telecommunication or electrical engineering. Okay, but your subject more matches with electrical. If you are from instrumentation, you want to apply, so you can choose any paper, either electrical or electronics and telecommunication. Okay, depending upon the syllabus. जो syllabus आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप पेपर चूज कर सकते हो. और अगर कोई बच्चा दूसरी ब्रांच का है, लाइक कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी कई बार क्या करते हैं, CSC के बच्चे भी इंटरेस्टेड होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, सो दे अप्लाई विद द पेपर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. ओके, नाउ दीज आर द डिपार्टमेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग, दीज आर द पोस्ट. सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ग्रुप ए की पोस्ट है? सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स, सर्वे ऑफ इंडिया, ग्रुप ए सर्विस. ओके, सो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर ग्रुप ए, कैटेगरी ए सर्विसेज. एंड in mechanical engineering we have some group A and group B services. Okay, these are the different posts. In electrical engineering we have group A and group B services. You can read them, okay, in the brochure. In electronics and telecommunication also we have group A, group B post, and these are the main post: Indian Telecommunication Service, Indian Naval Armament Service. Okay, JTO ये ग्रुप बी में आता है, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, जो BSNL में JTO होते हैं जैसे, तो वो भी यहीं से सेलेक्ट होते हैं. ठीक है. सेंटर्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के सेंटर्स हैं और मेन एग्जाम के सेंटर ये हैं, लिमिटेड है मेन एग्जाम के लिए. सो 2 एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स अलग होगा और मेन एग्जाम अलग होगा, एंड देन इंटरव्यू. तो 3 स्टेज होंगी टोटल. ओके, ये आपको याद रखना है. देयर आर 3 स्टेजेस. नाउ एलिजिबिलिटी कंडीशंस यू कैन सी: सिटीजन ऑफ इंडिया, subject of Nepal or subject of Bhutan or Tibetan refugee who came over India before the 1st January 1962. Okay, so ये conditions हैं. एज लिमिट आपको ध्यान रखना है 21 ईयर से ज्यादा और 30 से कम. 21 और 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए.
सो डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन किया हुआ उन्होंने, ही मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1993 एंड नोट लेटर देन 1 जनवरी 2002। ठीक है, 1 जनवरी 2002 से बाद में बोर्न नहीं होना चाहिए और 1993 से 2 जनवरी 1993 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपको डेट ध्यान रखना है। 30 साल की एज लिमिट है और डिफरेंट कैटेगरीज में जो रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंगली वो एलिजिबल होगा। यहां पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यू कैन आल्सो रीड। मोस्टली जितनी बीटेक की डिग्रीज होती हैं वो एलिजिबल होती हैं, बीटेक की ब्रांचेस, और कुछ साथ में एडिशनल जो आपके मेंबरशिप मिलती हैं जैसे पास्ड एसोसिएट मेंबरशिप एग्जाम पार्ट सेकंड, इस तरीके की, तो ये एलिजिबल है। ठीक है, एमएससी डिग्री भी आपका कुछ ब्रांचेस में एलिजिबल होता है, सो यू कैन रीड दिस। मेन पॉइंट्स आई एम हाईलाइटिंग हियर, rest you can do yourself. So this is the plan of examination. The examination shall be conducted according to the following plan. Stage 1 engineering services preliminary stage 1 examination ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, इसमें जो क्वालिफाई करेंगे वो सेकंड स्टेज में जाएंगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन स्टेज 2 में कन्वेंशनल टाइप पेपर्स होगा, जैसे आपका यूनिवर्सिटी में पेपर आता है ना सब्जेक्टिव पेपर, सो मेंस में सब्जेक्टिव पेपर्स आएंगे। एंड थर्ड स्टेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो यूरोपियन एजुकेशन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, यहाँ पे आप कर सकते हो। और साथ में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर 1 है उसके लिए भी डेडिकेटेड मॉड्यूल यूरोपियन एजुकेशन प्रोवाइड करता है, सो उस मॉड्यूल को भी आप चेक कर सकते हो। ओके, नाउ इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स स्टेज 1 एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पेपर्स कैरिंग ऑफ 500 मार्क्स। पेपर 1 में 200, पेपर 2 में 300 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसमें पेपर 1 में 200 नंबर का पेपर आएगा और पेपर 2 आपका 300 नंबर का होगा। जो इसको क्लियर करेंगे वही अगली स्टेज में जाएंगे। राइट, सो ये आपका मेन चीज है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेज 1 प्रीलिमिनरी स्टेज एग्जाम, तो कैटेगरी 1 सिविल इंजीनियरिंग है। पेपर 1 में जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 2 आवर्स में 200 मार्क्स का पेपर आएगा, और सिविल इंजीनियरिंग से 3 आवर्स में 300 मार्क्स का पेपर आएगा, सो टोटल 500। ठीक है, सिमिलरली फॉर मैकेनिकल एंड सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल एंड देन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ब्रांच के हिसाब से ये पेपर रहेंगे आपके। ठीक है, ये स्टेज 1 का बात हो गई। स्टेज 2 में अगर हम आते हैं तो यहां पे कन्वेंशनल पेपर होंगे। ठीक है, 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे। देखो 3 आवर्स के 2 पेपर्स, 300 मार्क्स 300 मार्क्स, 600 मार्क्स का पेपर होगा ये आपका। ठीक है, मैकेनिकल में अलग, सिविल में अलग, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपकी जो जो ब्रांच है उसके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, और पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये काफी गेट से भी मैच करता है और अपना अलग से स्टैंडर्ड सिलेबस भी ये प्रोवाइड करता है, तो उस सिलेबस को गो थ्रू करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं प्लीज अप्लाई फॉर दिस जॉब। फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो कंप्लीट कर चुके हैं बीटेक, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं उनको ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छी जॉब है, थोड़ा अगर मेहनत करोगे और क्लियर कर लोगे तो लाइफ टाइम आप एंजॉय करोगे जिंदगी। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल अपडेट यू about the another notification from any other PSU in the next video. Thank you.